थेम्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस है अभी? No, there is no legal restrictions. I'll tell you. The registration is done with the Ministry of Labor and Commerce. Then we have been approved by the Ministry of National Education, Paris, and we are now going for the accreditation process. तो इंडिया से कोई भी अब्रॉड जाना चाहता है सर, तो जॉब के लिए, तो उसको हाई क्वालिफिकेशन डिग्री की आवश्यकता है अभी? It is not like only having high qualification, but what happens is it gives an added advantage. When you are talking about a PhD from Europe or any other institution or any other country also, what happens is you get connected with a number of people. तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और बाहर का एजुकेशन सिस्टम दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ से भी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, तो क्या मेजर डिफरेंस क्या है? मतलब पढ़ाने के तरीके में मेजर डिफरेंस है, क्या कोर्स की बुक्स में ज़्यादा डिफरेंस है? When I talk about foreign education now, you get little bit of freedom and they focus more on research activities and experiential learning. तो मतलब ये बात तो ट्रू हो गई, पर जो सोचने वाला है वो ज़िंदगी में अच्छा कोई रिसर्च का टॉपिक अगर चूज़ कर रहा है सर, तो उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस में चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? क्या वास्तव में टॉप लेवल एजुकेशन लीडर्स को भीड़ से अलग करती है? Yes, this doctorate degree is becoming a norm now. PhD करने के लिए you have to burn a lot of money. So ये सब चीज ब्रेक डाउन हो गया है. कोई PhD करता है, कोई DBA प्रोग्राम करता है. So what he is doing is he is creating a research topic. राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। कैसे? धन्यवाद सर, बस बढ़िया सर. फाउंडर्स ड्रीम की बात आती है, मेरे को मज़ा आ जाता है जब एक फाउंडर नए नए लोगों को नौकरी देता है, फिर वो भी फाउंडर बनते हैं, फिर वो सिलसिला जारी रहता है। राकेश जी, थोड़ी सी आपके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सी आपका जो टॉपिक है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे को, थोड़ा आप सरल भाषा में बताओगे कि आप करते क्या हो? Yeah, basically I'm into education. I was a teacher and till 2012 I was teaching basically various commerce subjects, management subjects, and then I felt कि कुछ खुद से करना है. So we ventured into education. We started one school, which is a CBSE affiliated school, and simultaneously higher education. I was already working. So group बहुत अच्छा है हम लोगों का faculties का. So we started 2 colleges in Pune, वाह, and then we saw that there are certain restrictions in operating the colleges. So we were going and going. So COVID happened, and post COVID, what happened? Ki there was a lot of online education happening. And many organizations from Europe started offering programs here in India. So, and I find it very interesting कि these programs are good and people can do it with with their work. They can do these programs also. So, अभी मेरे जो groups थे means the faculty members उनके साथ हम लोगों का discussion हुआ. We tried to find out कि क्या exactly है market में. So I took admission in one of the program. I went to Europe. I made a pilot study of the entire program over there, and then we again sat down. तो फिर हम लोगों ने सोचा this thing we can do it in a much better way because we have the educational experience already. So then we started this organization in Paris, France, the Thames International University. वाह, So this was in 2022, registered with the Ministry of National Education, France. And from there, we are majorly focusing on 2 aspects. One is MBA program, and second thing is the doctoral programs. डॉक्टरेट। Yes. Now, what happens is when we talk about doctorate programs, it is like only a PhD concept, the traditional system, ki you will be requiring 3-4 years of intense research work. You'll have to focus completely on that. You'll have to leave your work and everything. So in this case, it is not like that. So there are many universities or institutions or business schools from Europe which are offering these programs online. ऑनलाइन, ठीक है। So it is like whenever a person feels कि yes मुझे कुछ अलग करना है, मेरा जो experience है या जो मैं काम कर रहा हूँ मैं उसको I have to bring it in front of the world. So they can enroll for this PhD programs. And here you get different options of doing a PhD. जैसे क्या? Means अभी there is one like Doctor of Business Administration is there. You have Doctor of Education. You have Doctor of Humanities. So Doctor by PhD by publication is there.
Means PhD by publication is such a good program if a person has got some previous publications in the form of ISBN books or ISSN journals or magazine articles are there. Those can be clubbed together, presented to the university. The university will appoint a panel. They will evaluate it. If they meet the standards, he is awarded PhD by publication. If there is any gaps, guide is appointed and you get to give some more publications and you can go by PhD by publication. बट मैंने तो देखा सर बहुत सारे लोग पीएचडी कर लेते हैं, जैसे हाउस वाइफ बहुत ज़्यादा पीएचडी करती है इंडिया के अंदर। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कर रहे तो पीएचडी कर लो, तो पीएचडी कर ली, फिर उसके बाद में क्या? उसके बाद में तो ना तो कोई पब्लिकेशन कर रहे हैं, ना कोई रिसर्च कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो ये पीएचडी फिर है क्या? PhD एक्चुअली क्या है, itself is a research activity. हाँ, Basically, India में means PhD, those who want to go into academics in the teaching job, they go for PhD. सिर्फ यही मान्यता है या फिर ऐसा नहीं है? Generally मान्यता है. हाँ, And those who feel कि आज नहीं कल जाएंगे teaching field में, they go for the PhD. राइट। That is the general trend. But when COVID happened, and when many edtech companies are offering these programs in India, the myth is broken. Because PhD करने के लिए पहले ऐसे था कि you need a master's degree, you need to give certain exams, and you have to give certain years, and you have to burn a lot of money. So ये सब चीज break down हो गया है ठीक है। with the online concept. And what has happened with the online concept? That admission can happen anytime. You are getting a degree from Europe, they are accredited, and they are globally accepted. So now the people are thinking ki yes, I should do it and I should go for it. But again, what has happened? This is known to the limited number of people. सबको नहीं पता है because everyone is not on means like Instagram or WhatsApp, because working professionals है, उनका काम ज़्यादा है, so they don't have time. So young generation देख लेता है. So means if a person is like having 5-6 years of experience, those who are into the tech field, they are going for it. But those who have 40 years of age or those who are at a mid-level manager, they are still not aware about this aspects basically. बट ये जो डिग्रीज होती है, जैसे मतलब आपने बोला डॉक्टरेट ऑफ Business एजुकेशन, yeah. सर, तो ये तो बहुत रेयर चीज हो गई, मतलब कम ही लोग करेंगे, बहुत मास में नहीं होगा, कम लोग करेंगे इसको, राइट? नहीं, इनफैक्ट अभी आप देखिए फॉर एग्जांपल डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है. डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली फॉर एवरीवन. Like whether you are into hospitality industry, whether you are into management, whether you are into manufacturing industry, everything can be clubbed with the management aspect. Means whether it is economics, whether it is commerce, whether it is banking, you can club down to the administration part. Correct. So that's why it is open for all. And today, if I say that majority of the candidates who are registered in Europe are from India. And they are basically who are into the different segments of working, whether they are into manufacturing, whether they are professionals like chartered accountants or CWAs or company secretaries, or they may be lawyers or they may be architects or interior designers. So they are doing these programs. तो मतलब क्या वास्तव में टॉप लेवल एजुकेशन लीडर्स को भीड़ से अलग करती है? Yes, definitely. Because see, what happens, no, generally पहले norm क्या था, means graduation was the norm कि you need a graduate. Then MBA became a norm कि post graduate चाहिए, but MBA became a norm कि even if engineering is there, he is doing MBA. Right. Okay, now what has happened in the industry, there is need of something different which is globally accepted. So this doctorate degree is becoming a norm now. It is taking up a space. Means as the NEP 2020 is talking about professor of practice, they want industry people to come down to academics because there is a huge gap between industry and academics. Sure. Ki people are not being prepared industry ready. Even if a person is studying commerce, he is not able to match up with the banking norms or whatever the commerce requirements are there or whatever the management requirements are there, he is not able. Company has to train him. Correct. So what is the NEP 2020 is talking that you should have professor of practice. Now, professor of practice is open for whom? Those who are from the industry and they are coming down to the academics for teaching. Right. Definitely, they have the experience. But what happens is when you walk into the academics, when you have that title of doctor, that gives more weightage. मुझे एक बात बताओ सर, अभी कोई भी जैसे मतलब जो जॉब कर रहा है अभी, राइट? जी. ठीक है, सब सब अपने आपको एलिवेट करना चाहते हैं, कुछ लोग बिजनेस में चले जाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने आपको जॉब में एलिवेट करना चाहते हैं कि हमें बिजनेस लीडर की तरफ बन जाऊं. जी. तो
कैसे कोई अपने आप को बिजनेस लीडर के रूप में बना सकता है? क्या उसको डिग्री लेना इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई ऐसा जो कोर्स जो आप बता रहे हो वो करना इंपॉर्टेंट है, या फिर वो स्किल्स के बेस पे आगे बढ़ सकता है? स्किल्स के बेसिस पे आगे तो बढ़ ही सकता है, बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीएचडी, नाउ पीएचडी हैज गॉट व्हाट 6 चैप्टर्स बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर कोई पीएचडी करता है, कोई डीबी प्रोग्राम करता है, सो व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज डिफाइनिंग हिज एरिया ऑफ स्टडी, ही इज क्रिएटिंग अ रिसर्च टॉपिक. नाउ हिज रिसर्च टॉपिक इज basically related to his area of experience, his area of work. Now suppose the person is working in HR field and वो HR का कोई topic उठा लेता है, recruitment and training. So what he'll be doing is he's putting his experience, what problems he has faced, what solution he can give. He will make a survey, he will interview people, and that will form his PhD thesis. ओके. Now this thesis can be submitted to his management, can be submitted to different companies. They can come out with the solution. जो problems company को face हो रही है, this he can provide a solution. And what happens is when it is in a written documented form, it carries more weightage. तो जैसे पीएचडी करी तो किसी ने ठप्पा लगा दिया कि भाई ये आपने जो मेथड दिया वो प्रूवन है, लाइक दैट कैसे काम करेगा? No, it's not 100% proven, but what happens is it is widely acceptable. अच्छा, Now widely accepted. widely acceptable हो जाता है because what happens, always there is a scope of improvement. So but what happens is when we are talking about a PhD, a serious PhD, you have a guide. Okay, he will design your topic, and when the topic is designed, you start the research. Now when we talk about the research, it is like you are taking up certain number of companies or certain number of samples you're taking up, you are doing an interview or you are preparing a questionnaire, and you are bringing out the data and you are analyzing the data. Correct. And then you are evaluating and giving up with the solutions. So that becomes widely acceptable basically. अब कोई भी प्रोफेशनल फुल टाइम जॉब कर रहा है जी तो स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होगा, जी. तो स्ट्रेस को कम करते हुए अपनी अपनी पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाएगा, मतलब कैसे कर पाएगा वो? इसमें see, actually what happens is when we talk about a PhD, general norm is that it should have 3 years of time duration. Now 3 years is generally very huge. Till post graduation what happens is we have semester pattern examinations. कि semester के पहले you start reading up and you give the examinations. Here it is not like that. You have 3 years of time duration. So what you have to do is you have to go align yourself with the guide. So आपको हफ्ते में maximum क्या है कि you have to give 2 hours or 3 hours of time duration. So you put in Saturday, Sunday or any of your holiday. Sometimes you get a gap in between. So those days you can utilize. So this is how you go on your own space. Means यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि yes this 6 semesters or 6 exams are there and आपको ये semester का exams देना है and you have to pass out इतना percentage आपको लेके आना है. It is not like that. It is very free activity basically. बस सबसे सिंपल चीज़ सबसे टफ होती है सर एक्चुअल। वो दिखता वैसे है. That is a myth actually. Means what has happened, unless and until you don't jump, you don't know how to swim actually. That's the thing actually. तो करते करते टाइम लग जाएगा, बट जैसे कोई सिंपल चीज़ सबसे टफ होती है, तो एक प्रोफेशनल अगर अपनी एजुकेशन को एलिवेट करना चाहता है, थोड़ा सा बढ़ना चाहता है, तो सिंपल तरीका क्या है? 3 स्टेप में बताओ सर। मुझे कॉल करो, हुँ। talk to me half an hour and then I'll take you to this journey. अरे वाह! ये तो 2 स्टेप में ही खत्म हो गया। बहुत सिंपल है सर. मीन्स आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली. मीन्स व्हाट हैपेंस इज पीपल हैव द मिथ. मीन्स व्हेनेवर आई गो, मीन्स आई हैव पर्सनल डिस्कशंस आल्सो, आई डू Zoom मीटिंग्स आल्सो विद द क्लाइंट्स, बेसिकली द कैंडिडेट्स आल्सो. सो आई जस्ट से कि आपको यू हैव टू जस्ट डिवोट सर्टेन टाइम. बाकी माय टीम इज देयर. यू गेट अ स्टूडेंट काउंसलर, यू गेट अ गाइड, दे विल बी हेल्पिंग यू आउट. आपको एक्सप्रेस करना है खुद. करेक्ट। आपका जो एक्सपीरियंस वो आप शेयर कीजिए. बाकी टीम इज देयर टू हेल्प. अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर. आई विल गिव अ वेरी मीन्स लाइव एग्जाम्पल अभी वाला है. अ पर्सन इज हैंडलिंग एन नंबर ऑफ कंपनीज एंड ही इज गिविंग फाइनेंशियल सॉल्यूशंस. तो ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग पीएचडी and he's very senior actually, and he's having a number of companies under his belt and he's guiding them. So he already has the data. So our guide, what he has did is उनके साथ बैठ के he just formalized his topic and लाइन में लेके आते हैं. He put it in one, channelized it, and now he is working on his thesis. उनका research proposal submitted हो गया. Now he is working on his thesis. He is more than happy. I'll give you one more example. Means Indian Merchant Chambers के जो president रह चुके हैं, he is now beyond 70 years of age. He did his graduation way back in 1973. Now and he has been working for various chamber of commerces globally basically. And he wanted to do his PhD. Knowledge is there, experience is there, but
how to bring it out. So he joined us. Guide was allocated. Guide helped him to prepare the thesis. He's more than happy now. His wife is going to register in 2026. पर अभी थेम्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस है अभी? No, there is no legal restrictions. I'll tell you. What happens is the registration is done with the Ministry of Labor and Commerce. Then we have been approved by the Ministry of National Education, Paris, and we are now going for the accreditation process. Now, what happens is when we talk about the any education system, that legality is what you have to be registered. There are two types of register. Means one, you register as an entity first, and then you need the permission to operate it. Correct. Like suppose a hotel industry is operating, means पहले registration हो जाता है, then they will have certain licenses to operate as a hotel. Business registration and license to operate that particular business. Same way as an education entity, we are registered, we have the license to give the degrees. Correct. Now, what happens is when we talk about the quality aspect, quality aspect आता है accreditation part. Now, when we talk about accreditation, it is a process. So first you have to become a member. You have to prove yourself. Yes, we are on this particular pathway. So we are now the member of a reputed institution, ACBSP, and soon we'll be going for the accreditation also. तो इंडिया से कोई भी अब्रॉड जाना चाहता है सर तो जॉब के लिए, तो उसको हाई क्वालिफिकेशन डिग्री की आवश्यकता है अभी? No, it is not like only having high qualification, but what happens is it gives an added advantage. Because if you see WES or other agencies, based on your qualification, you get marks. Correct. So that adds value. तो वो एवेल्यूएट करता है। तो अभी मतलब कि अभी आपने सिर्फ 2 ही कोर्सेज की बात करी है, एक तो एमबीए कोर्स और एक डॉक्टरेट। We are focusing only on that because that is the niche. We can offer undergraduate programs also like BBA, BCA also, but we are not focusing on that. We are focusing for the working professionals. And right now what we are doing is, अगर किसी के पास MBA नहीं है या MBA है भी, so along with our PhD, we are giving our 1 year MBA also free of cost to them. तो एमबीए के अंदर भी कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा चल रहा है सर? जैसे आईटी हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, तो कौन सा सबसे ज़्यादा बूमिंग पे है और सबसे ज़्यादा लोग कौन सा अडॉप्शन पे adoption है? Now what has happened, no, people are not going for the masters. Means if I am talking about the very current market scenario, now everyone is running behind AI or robotics or data analysis right at this particular moment. But what we are doing is MBA ka we have formulated in such a manner that we are giving 10 compulsory subjects and specialization you can choose. We have n number of specialization. Based on that, you have to prepare a capstone project and present it. So specialization can be taken in their एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। सर कोई ऐसा कोई पैटर्न आपने नोटिस नहीं किया जिसमें पता लगे कि फाइनेंस में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं या फिर एचआर में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं या फिर बिजनेस साइड में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं? नो, वी आर ओपन टू ऑल बेसिकली, सो हमने उसको एनालिसिस नहीं किया बेसिकली। अभी बताइए सर, जैसे मान लो कि अपन ने बाहर से पीएचडी, यूरोप से पीएचडी की अपनी डिग्री ले ली, तो जो वो पैटर्न से अपन जो पढ़ाई करी यहाँ के लोगों ने, तो क्या वो बिगड़ सोचने पे मजबूर कर देती है चीज़ों को, या फिर वास्तव में मतलब एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि भाई इंडिया सिस्टम से जो पढ़ाई करी है और जो वहाँ से पढ़ाई करी है, तो आपको ग्लोबल सोचने पे मजबूर कर देता है? ग्लोबल सोचने में भी मजबूर करता है, आपके कनेक्शंस बनते हैं। When you are talking about a PhD from Europe or any other institution or any other country also, what happens is you get connected with a number of people. आपके गाइड्स मिलते हैं, आपका पैनल बनता है, तो पैनल के सामने आपका प्रेजेंटेशन होता है, यू अटेंड सर्टन सेमिनार्स, यू अटेंड सर्टन कॉन्फ्रेंसेस, आप बुक्स पब्लिश कराते हो, जर्नल्स पब्लिश कराते हो, तो यू गेट कनेक्ट्स एंड दैट चेंजेस योर एंटायर पर्सपेक्टिव. इट बूस्ट योर मोरल एंड मोरल बूस्टिंग विल इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी. तो क्या कोई आप एक एग्जांपल दे सकते हो किसी स्टूडेंट्स का कि जिसने ऐसा किया हो और उसकी लाइफ चेंज हुई हो? Examples I'm already told, means there is one Mr. Balaji, he is heading a company wherein he is giving financial advisors to many things. So he is already on that particular watch. Ram Gandhi, as I said, he has was the president of Indian Merchant Chambers. He is he already finished it basically, and there are a few more candidates. Means we are not only catering to India, we are catering to other countries also. So they are like on the right path, and they are getting the feel and benefit of it. तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और बाहर का एजुकेशन सिस्टम दोनों को अगर कंपेयर करें, यहाँ पे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ से भी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, तो क्या मेजर डिफरेंस क्या है? मतलब पढ़ाने के तरीके में मेजर डिफरेंस है या कोर्स की बुक्स में ज़्यादा डिफरेंस है? No, आई हैव ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली और मैंने इसके ऊपर बहुत एक्चुअली रिसर्च किया है. थोड़ा सा क्या होता है, व्हेन आई टॉक अबाउट फॉरेन एजुकेशन ना, यू गेट लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम and they focus more on research activities and experiential learning. मीन्स आपको फ्रीडम ज़्यादा मिलती है.
बट फ्रीडम के साथ क्या होता है, यू हैव टू सी दैट आप मीन्स कहीं से उठा के ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, इट गोज थ्रू प्लेगरिज्म चेक. सो व्हाट हैपेंस, आपको फ्रीडम है मीन्स लेट्स से फॉर एन ओपन बुक टेस्ट. ओपन बुक टेस्ट ऐसा है कि आपके पास बुक है और आप टेस्ट देख के दे सकते हो, बट द कंडीशन इज दैट यू कैन नॉट राइट एज इट इज. आपको रिफ्रेम करना है. नया वाला ना रीफ्रेम करना है। यस, दैट चैनलाइजेस योर थिंकिंग. जैसे मेरा नाम अभिषेक है, मैंने लिखा, मतलब किसी ने लिखा मेरा नाम अभिषेक है, किसी ने लिखा मैं अभिषेक हूँ, मैं अभिषेक हूँ, तो उसको चेंज करके लिखना है। चेंज करके लिखना ना. ही हैज टू प्रेजेंट इट इज इन ओन वर्ड्स, ही हैज टू थिंक इट. इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ केस स्टडी, केस स्टडीज में होता कैसे है कि एक कंपनी है, कंपनी का कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इट मे बी रिलेटेड टू एचआर और इट मे बी रिलेटेड टू सेल्स. सो व्हेन द प्रॉब्लम इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट कंपनीज पर्सपेक्टिव. फिर आप उसके लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बना के आप कंपनी को प्रेजेंट करते हो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मतलब ये बात तो ट्रू हो गई कि स्कूल में रटने वाला स्कूल में टॉपर बनता है, पर जो सोचने वाला है वो जिंदगी में सफल बनता है। Yeah, in fact, now the things are changing in India also. We are talking about skill education. Now there are certain schools which I'll tell that Maharashtra में भी number 1 पे भी आई है school कि they are means from the bottom age they are promoting robotics or AI in their school basically. So वो जो textbook वाला concept है, it gives you the base. आपको base दे देगा, but you have to build on it basically because see functions of management हमने अगर 10 साल पहले पढ़ा है तो दैट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर गोइंग टू चेंज. आप अगर कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग की पॉलिसी की अगर आप बात करोगे, प्रोडक्ट्स को लेके बात करोगे, सो दैट वाज रिटन 20 years बिफोर. सो दैट कैन नॉट बी ट्रू इन रिसेंट टाइम्स बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, सो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट एक्चुअली. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी 2020 के बाद तो बहुत सारी चीज़ बहुत सारा चेंजेस हो गया एंड थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली. करेक्ट। आपकी ज़िंदगी कैसे शेप हो गई, मतलब 2020 के बाद में? आपने 2022 में कंपनी बनाई है, पहले आप अलग काम कर रहे थे, अब अलग काम कर रहे हो तो। एजुकेशन इज माई पैशन. हम्म, सो एजुकेशन में हम लोग हमेशा चाहते थे कुछ नया आए सामने, एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए हम लोग ऑलरेडी वी वर फॉर इट बेसिकली. सो इंडिया ऑल्सो वेंट फॉर द चेंज 2020 से एनईपी में, बट वी आर लिटिल बिट स्लो. But when we are talking about the foreign education, when we started this 2022 say company, we are known globally now. Means we were limited to one particular city, and now we are in the global market. So and what happens is when we talk about education, no, what happens is with education, when you meet 10 people, no, you get different perspective. You can come and build up your company, or you can build up your business, or something add-on can be done. Means you're not just a एम्प्लॉय और समथिंग लाइक दैट. आप ठीक है पीएचडी कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो कोर्स, बट आप जब 10 लोगों से मिलते हो, आपकी आइडियाज ओपन अप होते हैं, आप कुछ और कर सकते हैं. हाँ, ये सोच सकते हैं कि हाँ मैंने ये प्रोडक्ट में मेरा एक्सपर्टीज है, सो आई कैन गिव दिस एक्सपर्टीज टू 10 डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो. बट आजकल तो एआई से सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा? मतलब जैसे मान लो मैं 10 लोगों से मिलूँ नहीं मिलूँ, फर्क क्या पड़ता है? मैं चैट जीपीटी या फिर ओपन एआई किसी से बात करूँ, तो मुझे आंसर देगा। दे देगा आंसर, बट वो आपको पर्सनल टच नहीं आएगा एंड वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा. रिसेंटली मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था चैट जीपीटी का लेके कुछ समथिंग, बट येस देन आई केम टू नो नहीं, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट. ह्यूमन टच इज इम्पॉर्टेंट, एंड अनलेस एंड अनटिल यू टॉक टू पीपल, अनलेस एंड अनटिल यू डिस्कस, यू डोंट गेट द राइट सोल्यूशन. मेरे को एक चीज़ मिली सर, मैं शेयर करूँ आपको छोटे? बोलिए सर. चैट जीपीटी से जब भी कोई आप सॉल्यूशन लोगे ना, किसी भी तरह का कोई भी बात करोगे, तो आपको सारा सॉल्यूशन दे देगा। ये रियल वर्ल्ड है, वो है एआई वर्ल्ड। यस. ठीक है, तो जब आप उससे बात करोगे, पूछोगे कि देखो मैंने ऐसा किया वैसा किया, मेरे को ये करना वो करना, वो आइडिया बनाना ये बनाना है, तो आपको सब कुछ फ्रेम करके दे देगा। दो चीज़ों को समझना है आप है, ये एआई अंदर जिसको कुछ समझ मतलब कॉन्शियसनेस नहीं है जिसमें, जी. और आपके पास ह्यूमन के पास कॉन्शियसनेस है, तो उसने जब आपको कोई आंसर दिया, तो आप उससे पूछोगे यार क्या ये रियल वर्ल्ड में काम करेगा? तब आप बताएगा कि देखो वो तो आपको परखना पड़ेगा कि ये रियल वर्ल्ड में काम करेगा या नहीं करेगा, बराबर. मैं तो आपको सिर्फ बता सकता हूँ। ट्रू ट्रू. और जब आप ह्यूमन से बात करते हो तो वो आपको एग्जैक्ट आइडिया दे देता है। कोई भी बिजनेस चालू करना हो या फिर कोई भी पढ़ाई करनी हो, कुछ भी करना हो, वो आपको एग्जैक्ट आइडिया दे देगा कि रियल वर्ल्ड में क्या चाहिए। Exactly. दैट इज So मेन that's why इम्पोर्टेंट। means you have to use the developments to the limited extent जहाँ तक आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है. अगर आप कोई भी चीज का अगर मिसयूज करोगे या एक्स्ट्रा जाओगे, तो दैट इज गोइंग टू बैकफायर. अच्छा, जितने भी 9 to 5 वाले लोग हैं जो हमको सुन रहे हैं आज, बहुत सारे लोग तो अभी ऑफिस में देखते देखते सुनने लग जाते हैं, कि अपना पॉडकास्ट ही ऐसा इंटरेस्टिंग है जी जी. कि जहाँ पे जितने फाउंडर्स आते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि
तंत्र मंत्र विद्याएं ये सब जो है, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो चीज नहीं है, वो लोग ज्यादा, जिनको कोई काम नहीं वो सुन रहे हैं। बट अपन तो फाउंडर्स टीम के अंदर उन लोगों के लेके आ रहे हैं जो रियल चीज बना रहे हैं, रियल वर्ल्ड में काम कर Yes, रहे हैं, yes. रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, रियल लोगों से मिल रहे हैं। तो वो फाउंडर्स टीम में मिलता है। तो 9 to 5 वाले सुन ही रहे हैं, तो उनके लिए इंस्टेंट माइंड चेंजिंग कोई टॉपिक है आपके पास, कुछ चीज बताना चाहते हो जिससे इंस्टेंट माइंड चेंज जो है वो अपनी डिग्री को एलिवेट कर ले? सी मैं एक ही चीज बताऊंगा, मीन्स आपके पास एक्सपीरियंस है, उसको आप बाहर लेके आइए एंड यू गो फॉर एनी इंस्टीट्यूशन. इट इज नॉट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट थेम्स. आप आपका स्टडी को छोड़िए मत. डोंट लीव योर स्टडीज बिहाइंड. मीन्स इट इज एन not an end actually. Means whenever you find time, you have to keep on learning, and when you are keeping on learning, no, you find new ways also, new channels also. So it is, you go to any institution, you turn your experience into degree. Correct. मैंने ना एक पॉडकास्ट में बात बोली थी, थोड़ी सी वायरल हो गई थी, वापस बताता हूँ इस पॉडकास्ट में भी, जी कि स्किल ही एक ऐसी चीज है सर, जी जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। 100%. आपसे सब कुछ लिया जा सकता है, पर आपकी Yes. स्किल नहीं ली जा सकती। जी बिल्कुल. तो सीखते रहना अगर आप में सीखते रहने की चाह है हमेशा, जी तो आप वैसे ही ग्रो करते रहोगे। 100%. और एक और एग्जांपल देता हूँ, जब आप ऐसे फोन लेके ऐसे चलोगे सीधे 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 सीधे, तो पूरी दुनिया पीछे जाते हुए दिखेगी आपको। जैसे आप स्टॉप हो गए तो और रुक जाएगी। तो जैसे आपने लर्निंग स्टॉप करी, वो दुनिया भी आपकी वहीं रुक जाएगी। That's why it's always said कि keep on learning. अच्छा, अगर कोई बोले कि एक्सपीरियंस ही काफी है, सब कुछ एक्सपीरियंस से हो जाता है, तो हम यही बोल रहे हैं ना, एक्सपीरियंस ही होता है ना. बट आपका एक्सपीरियंस बाहर लेके आइए ना दुनिया के सामने, उसी को कन्वर्ट करना है हमको पीएचडी में. एक्सपीरियंस ही सब कुछ है. करेक्ट। आपका एक्सपीरियंस है, आपका नॉलेज है. हम यही चाह रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस लोगों के सामने लेके आइए, वो शेयर कीजिए. सी, अब हम लोग ये बोलते हैं ना, नॉलेज बांटने से बढ़ता है. सो योर एक्सपीरियंस यू शेयर इट विद पीपल. एंड आपके एक्सपीरियंस में, और मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करता हूँ, ही विल ऑल्सो शेयर हिज एक्सपीरियंस. सो उसका एक्सपीरियंस मेरे काम आएगा, मेरी एक्सपीरियंस उसके काम आपकी आएगा. लाइफ की लर्निंग क्या रही है सबसे सॉलिड? सेम थिंग, कीप ऑन लर्निंग. हाँ। And means work for the people basically. Means education passion है, and children हो या anyone हो, keep them guiding towards education. अच्छा, कोई रिसर्च का टॉपिक अगर चूज कर रहा है सर, जी. तो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस में चीज पे ध्यान देना चाहिए? Two things, current and future. Means current क्या काम कर रहे हैं and future गोल क्या है, and based on that he can design his research topic. कोई आपने रिसर्च देखी जो सॉलिड सक्सेसफुल हुई हो, किसी ने बनाई हो? कोई भी रिसर्च अगर आप यहाँ शेयर करना चाहो? रिसर्च एज सच नहीं सर, बट अभी कैसे, फॉर एग्जांपल इफ आई से फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव, अभी जैसे प्रोफेसर है कि उन्होंने इकोनॉमिक्स में किया है पीएचडी, एंड ही हैज फॉर्मुलेटेड और गिवन सर्टेन सॉल्यूशंस दैट हैज बीन सक्सेसफुली implemented in the universities basically, or rather in the companies also this has been successfully implemented. And many, there are not only about my institution, there are many institutions जहाँ से लोगों ने पीएचडी किया है और उनके कंपनी में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है उसको. कोई एक स्टडी आपके पास है अभी बताने के लिए? Point out one Mr. Uday Pagedar. Now, nobody knows basically, you have done any management education or commerce education, there is a concept called behavior-based safety. Now, that person has done his thesis based on the behavior-based safety and how the behavior and safety of individual impacts the productivity in the company. So that particular aspect has been utilized positively in his company, and that has been a study matter also in many universities in Gujarat. So that is one live example which is recently in progress. Okay. And then there are many students, means who are by batchmates also in other institution from where I had registered. So they are also doing good in their companies basically. Now, again, I'll tell you one example of our candidate who has done this program. She is basically from Dubai, and she has done a study of what the student projection who will be going to study in UAE. Now, Europe is one market for study perspective. Dubai is one hub in the Gulf, wherein you have majority of the universities coming from Europe, UK, US, New Zealand, and Canada. So what her study was, how they can increase the number of students flow to UAE, because your visa is easy, your stay is less cheaper, and degree cost is also cheaper. So they are targeting. This study will help the institution how they can promote in India.
तो अभी यूएई में ज़्यादा कल्चर बढ़ रहा है, इस तरह से कुछ है? हाँ, study. They have the knowledge parking. There are many institutions which are coming up there in UAE basically, and in fact, India is also registered now. Many UK universities are trying to set up universities in Mumbai, Delhi, and Chennai. तो अभी आपके साथ लोगों को जुड़ना होगा तो कैसे जुड़ पाएंगे? Our website is there, and my name is all over there, so they have to just connect it. And rather than connecting with me, my first thing or suggestion is that explore the market. आप मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए, फाइंड आउट व्हाट इज देयर इन द मार्केट एंड देन कम टू अस. मतलब थोड़ा सी मतलब इसको और एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे, मतलब कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि कौन क्या सर्च करे और कैसे आपके पास आएगा और कैसे एलिवेट करेगा 3 स्टेप में. ओके, अभी मान लीजिए आपको पीएचडी करना है. ठीक है, मतलब मेरा मन हुआ पीएचडी करने पीएचडी करने का आपका मन होगा, Out of the पीएचडी box. आउट ऑफ द बॉक्स पीएचडी करना है, पीएचडी करना है. या आपने कहीं पे सुन लिया कि पीएचडी का है, या आपने एडवर्टाइजमेंट देख लिया पीएचडी का, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है, तो आप सर्च कीजिए कि ऑनलाइन पीएचडी ऑप्शंस. या आपको क्या करना है, आप कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए कि वाई पीएचडी, कि आप अगर इंडिया से पीएचडी करोगे और ऑनलाइन पीएचडी करोगे तो यू कंपेयर इट, देन यू शॉर्टलिस्टेड कि हाँ मेरे को ऑनलाइन पीएचडी करना है, इसके फायदे ज़्यादा है. तो ऑनलाइन पीएचडी का आपने सर्च कर लिया, फाइनलाइज कर लिया, देन यू सर्च फॉर द इंस्टीट्यूशंस कि हु आर गिविंग यू द ऑप्शंस. देयर आर इंस्टीट्यूशंस इन मलेशिया, देयर आर इंस्टीट्यूशंस इन दुबई, देयर आर इंस्टीट्यूशंस इन यूरोप. करेक्ट. आप स्टडी कीजिए, 8-10 यूनिवर्सिटीज, 8-10 इंस्टीट्यूशंस है, प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस है, यू हैव टू शॉर्ट डाउन. नाउ सी, आपका जो कोर्स है दैट इज अल्टीमेटली फाइनली द सेम. करेक्ट. PhD journey has to be smooth. It is not your graduate, it is not your MBA, जहाँ पे आपको एग्जाम्स देना है and you will get the result. You need a good guide. He will be helping you to prepare the thesis and आपको वो thesis present करना है. And that thesis should be plagiarism free. Means आपका ऐसा नहीं है कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया thesis और वो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम्स कि आपको कौन सी इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है. Correct. एडमिशन देने के लिए सब बैठे हैं, एवरीबडी नीड्स मनी. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज एडमिशंस तक आपके साथ सब अच्छा बात करेंगे. आफ्टर सेल सर्विस, करेक्ट, कि आपको गाइड कहाँ पे अच्छा मिलेगा, आपका हाथ पकड़ के लास्ट तक कौन आपके साथ चलेगा. करेक्ट. मैंने पैसा ले लिया और मैंने गाइड दे दिया, बट आई एम नॉट बिहाइंड यू. मैंने आपको स्टूडेंट काउंसलर नहीं दिया, आप नहीं देख रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग इट. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग अ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, आप खुद स्टडी करते हो बिकॉज आपको जॉब करना है. Correct. यहाँ तो आपके पास जॉब है, सो आपने पैसा भर दिया, आपको पैसे का भी दुख नहीं है बिकॉज इट इज आउट ऑफ योर अर्निंग्स, यू हैव पेड इट. बट नाउ हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट जर्नी, बिकॉज आपका 3 साल निकल जाएगा, बट इसमें स्टेप्स है, आपका टाइम बाउंड नहीं है कि आपको 6 महीने के बाद एग्जाम्स देना, आपको पढ़ना है. तो दैट जर्नी यू नीड अ गुड गाइड हु विल हेल्प यू और आपको मोटिवेट करता रहे कि आप ये कर लो, आपको इतना प्रोग्रेस कर लेना है, यू हैव टू डू दिस, आप ये स्टेप कंप्लीट कर लीजिए. सो यू नीड अ गुड मोटिवेटर टू डू दिस. सो ये हमारा यूएसपी है. तो हम सबको क्या बोलते हैं, आप मार्केट ढूंढ के आइए, देन यू सिट विद मी एंड देन लेट्स डिस्कस एंड देन फाइनलाइज इट. तो जो लोग मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं वही अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं. जी. एंड सी वी हैव द कॉन्फिडेंस कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मार्केट में आप अगर 4 यूनिवर्सिटीज भी देख के आओगे, सी मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट. यार मनी आपका एक 1-2 lakhs हियर एंड देयर, इट विल हैपन. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज व्हाट आई से इज कंप्लीटिंग द जर्नी. स्टार्ट कोई भी कर लेगा, करेक्ट. कंप्लीटिंग द जर्नी इज इम्पोर्टेंट. आप बड़ा नाम ले लोगे, यस यू आर डूइंग फ्रॉम अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन, बट आप वो जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो मतलब नहीं है. यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में क्या रखना है कि यू आर वर्किंग, आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो या आपका बिजनेस है, आप आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो, साइमल्टेनियसली आपको ये अचीव करना है. सो वहां पे आपको एक अच्छा साथी चाहिए एंड दैट इज थेम्स. अच्छा, वो अच्छा साथी का पता कैसे पड़ेगी अच्छा साथी है थेम्स? आपको डिस्कस करना पड़ेगा ना. किससे? आप 4 इंस्टीट्यूट से डिस्कस कीजिए ना. आपको डिस्कस करने के बाद आपको समझ में आएगा एंड यू रीड द सक्सेस स्टोरीज. आप 4 लोगों, एवरीवेयर देयर विल बी द clients will be there or the candidates will be there. You read the success stories, you discuss with people and then you decide.
तो दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई कि भैया कोई भी काम करना तो पहले डिस्कस करना इंपॉर्टेंट यस 100% आपको Market डायरेक्ट जंप नहीं करना है explore यस करना है। मार्केट एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है वाह सर इस पॉडकास्ट का एक आखिरी मैसेज टू ऑल यंगस्टर 9 to 5 वालों को जो अपनी ज़िंदगी में एलिवेट करना चाहते हैं कीप लर्निंग टर्न योर एक्सपीरियंस इनटू डिग्री एंड कीप ग्रोइंग जी थैंक यू राकेश सर थैंक यू बहुत सर बहुत धन्यवाद थैंक यू आई सर विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर